Everyone, I am Ratish Kumar and today I am going to discuss a new topic named Making of Global World. The topic name is Making of a Global World. This is a topic of Standard 10 History. So in this topic we will discuss about how मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड इमर्ज। जो मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड हम लोग देख रहे हैं, ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब क्या? पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड they have been mixed with each other, they have been, now they are dependent with each other in technology, in so many aspects, ideology, culture. We are seeing that lot of interchange. So this is called global world. Since last 50 years, it is very much means people have mixed so much, and we are thinking when we are discussing about global world, we think about last 50 years. No, globalization process started from so many centuries ago. Even before prehistoric time, globalization process were going on. Even during 3000 BCE, during Indus Valley civilization, there were cultural exchange, there were exchanges of goods between Indus Valley civilization and Mesopotamian civilization. Indus Valley civilization जो 3000 साल पहले का है, क्राइस्ट से भी 3000 साल पहले BC, उसमें उसकी सामान जो है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिलता है उस समय के, और इस तरह से मेसोपोटामिया का सामान इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है, काफ़ी कुछ एक्सचेंज होता था. बट आफ्टर 14th century it became a systematic, the process of globalization very frequent. Even from 13th century, that will be better to say that from 13th century, process of civilization became very frequent because of some reasons. Due to Renaissance, discoveries started, Europeans started traveling worldwide and they found new places. And even after that, industrial revolution took place. Again, more and more trading started, intercontinental trading also started. So all these things led to globalization. So, and there are certain factors, certain specific things which played very important role in globalization. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हुआ, और इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो हम लोग अगर देखेंगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, तो हम लोग को समझ में आएगा कि ग्लोबलाइजेशन उस समय भी कैसा था और कितना तेज था, कितना ज़्यादा था. अब जैसे एक हम लोग देखें, अगर समझे तो सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड. अगर सिल्क रूट के बारे में हम लोग देखें तो सिल्क रूट एक ऐसा रूट था जो चाइना से होते हुए, जिसमें इंडिया के भी ऊपर का पार्ट कवर होता था, इंडिया से भी वो इंडियंस भी यूज़ करते थे. तो चाइना से होते हुए, सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप तक वो जाता था सामान, जिसमें कि एशिया से लेके पूरा यूरोप तक का ये सिल्क रूट लिंक करता था. एंड थ्रू सिल्क रूट नंबर ऑफ गुड्स यूज्ड टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम एशिया टू यूरोप, and many Europeans also used to come. Basically they were importers, and Asian countries like China and India were exporters of the gold. सिल्क के सामान जाता था, सिल्क के गुड्स, सिल्क प्रोड्यूस जो चाइना से होता था. इसके अलावा इंडियन स्पाइसेस, इंडियन कॉटन्स, these things were also exported through सिल्क रूट. और सिल्क रूट से जो इंडियन रिलीजन है, इन जो धर्म का भी आदान प्रदान होता था, आइडियोलॉजीज का होता था, कल्चर का भी आदान प्रदान होता था. ऑल दिस सिल्क रूट प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल दीज थिंग्स. सो if we will see about the next thing,
food travels. Food travels. So spaghetti and potato. So during that time also, when Europeans discovered many countries of America, South America, North America, they found very different type of foods. These foods and these crops were cultivated by original people of America. They were called Indians American. तो ये लोग जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे, जैसे इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है मेज, जो मक्का बोलते हैं हम लोग, टोमेटो, पोटैटो जो कि हर दिन के खाना का एक मेन फूड है। ये सारी फूड्स एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन सभी कॉन्टिनेंट में जो ओल्ड वर्ल्ड है कोई नहीं जानता था 16th सेंचुरी तक। बट व्हेन क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, just see, this part is America. So Christopher Columbus, European sailor, he started from Spain and he discovered America. He found, and after him many Europeans also visited there. They crossed the Atlantic and many new crops discovered. और ये सब क्रॉप्स जो हैं, जैसे कि पोटैटो, जो यूरोप का स्टेपल फूड बन गया, क्योंकि यूरोप के में पहले काफ़ी फूड की प्रॉब्लम होती थी. दे वर मेनली डिपेंडेड अपॉन मीट एंड बट पोटैटो प्रूव टू बी ए गेम चेंजर फॉर यूरोप. वहाँ के गरीब के लिए एक अच्छा स्टेपल फूड हो गया पोटैटो. और पोटैटो का इतना इफेक्ट था कि अगर यूरोप में एक बार पोटैटो डिस्ट्रॉय हो गया आयरलैंड में ड्यू टू डिजीज़ इन 1840, एक डिजीज़ की वजह से सारा पोटैटो डिस्ट्रॉय हो गया, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर डाइड ड्यू टू स्टारवेशन. वो गरीब के लिए इतना इम्पोर्टेंट था पोटैटो. सो सारे इन सभी देशों में बहुत सारे क्रॉप्स से, जैसे मेज़ हुआ, मक्का, आज भी हम लोगों के डेट में हर चीज़ों में कॉर्नफ्लेक्स, ये वो हम लोग जो खाते हैं, इस तो सारी चीज़ें स्टेपल फूड बन गई. इसके अलावा फूड का अगर देखेंगे हम लोग, उसके पहले से भी चाइना में, जैसे जो चाइना का जो नूडल है वो सिल्क रूट के थ्रू और डिफरेंट रूट के थ्रू यूरोप में चला गया. फिर वहाँ पे एक फॉर्म चेंज हो गया, उसका स्पागेटी बन गया. और इस तरीके से पास्ता भी अरेबियंस लोग ले गया था, जो इटली में पहुँचा था पास्ता, जो बाद में इटली का ही मेन लैंडमार्क फूड बन गया. तो ये सारी फूड का भी ट्रैवलिंग हो रहा था. ये सब ग्लोबलाइजेशन को पता चलता है कि उस समय का ग्लोबलाइजेशन कैसा था. तो वर्ल्ड वेयर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो. इसके अलावा अगर हम लोग को समझना होगा कि कैसे उस समय का वर्ल्ड एक दूसरे से लिंक था. तो कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड. कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड. दिस इज ऑल्सो ए वेरी मीन्स इंटरेस्टिंग पार्ट. व्हेन यूरोपियंस डिस्कवर्ड द अमेरिका, both America, North America, South America, they found that some original peoples living there. वहाँ के ओरिजिनल पीपल लोग वहाँ रह रहे थे, जिसका नाम इन लोगों ने इंडियन दिया था. इंडियन इन्होंने क्यों दिया था, इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है. जब कोलंबस निकला स्पेन से, तो उसका मेन टारगेट था कि उसको इंडिया खोजना था, क्योंकि इंडिया का जो लैंड रूट था, इंडिया का लैंड रूट वो कम्प्लीटली अनसेफ हो गया था लैंड से. जब पहले वाला जो रूट था जिससे यूरोपियन लोग आते थे लैंड होते हुए, वहाँ पे 15th सेंचुरी में टर्किश एम्पायर का कैप्चर हो गया था उस लैंड रूट इलाके में, सेंट्रल एशिया में. और ये टर्किश लोग मुस्लिम एम्पायर था, और ये लोग इधर यूरोपियंस क्रिश्चियन थे. तो मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में एक तरह का होली वार भी चला रहा था. तो जिस वजह से ये लोग अब इस रूट से नहीं आना चाहता था. ये लोग इंडिया के लिए एक अल्टरनेटिव रूट खोज रहा था. और जितने भी यूरोपियन सेलर्स थे, वो लोग
निकल रहे थे, वॉयजेस पे निकल रहे थे कि इंडिया खोजना है, क्योंकि इंडिया वाज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर एवरीवन। पूरे यूरोप वाले को इंडिया खोजना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसी से ट्रेड, मेन ट्रेड होता था इंडिया से इनका। तो क्रिस्टोफर कोलंबस वाज ए स्पेनिश सेलर, हालांकि ओरिजिनली ही वाज इटालियन बट ही वाज लिविंग इन स्पेन, और स्पेन की महारानी ने इंडिया को खोजने के लिए उसे पैसा दिया था कि इंडिया का पता करो, वो स्पॉन्सर किया गया था स्पेन के द्वारा। तो वो निकला तो उसे लगा कि मैं इंडिया अगर इस तरफ जाऊंगा, क्योंकि अर्थ गोल है, दुनिया गोल है, तो अगर वेस्ट होते हुए जाऊंगा तो मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा। और उसने अटलांटिक को क्रॉस करने का कोशिश किया, हालांकि थोड़ा साउथ भी आ रहा था, और इधर से उसने इंडिया को अपने हिसाब से आगे बढ़ते हुए आया। और वो इत्तेफाक था कि क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंच गया साउथ अमेरिका के किनारे। साउथ अमेरिका के किनारे पहुंच के उसको ऐसा लगा कि मैं इंडिया आ गया हूं, और उसने वहां के लोगों को जब देखा तो उसे लगा कि मैं इंडिया ही में आ गया हूं, और वहां के लोगों को इसने इंडियन बोलना शुरू किया। और इसके बाद से जितने भी यूरोपियन सेलर्स आ रहे थे वो साउथ अमेरिकन्स को इंडियन ही बोलते थे। हालांकि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका सभी जगह धीरे धीरे यूरोपियन जाने लगे। अब नॉर्थ अमेरिका में भी यूरोपियन सब बाद में पहुँचे। पूरे कॉन्टिनेंट पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पे धीरे धीरे यूरोपियंस का कैप्चर हो गया, और ये सारे वहाँ के लोकल पीपल को इंडियंस बोलने लगे। हालांकि वहाँ पे बड़ा बड़ा एम्पायर भी था, वो लोग काफ़ी डेवलप थे अपने आप में, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन वगैरह में काफ़ी फेमस, इनका अच्छा आर्किटेक्चर था। इसमें इनका एम्पायर, एज़टेक एम्पायर, ये सब क्लास 11th के हिस्ट्री में डिटेल में दिया हुआ है। ये सब पे इन लोगों ने, स्पेनिश लोगों ने सबको, इन लोगों को हरा के कब्जा कर लिया। और एक ऐसा टाइम आ गया था कि यूरोप में 40 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे पूरे अटलांटिक पे यूरोप स्पेनिश का कैप्चर हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे पोर्तुगीज़ भी आना शुरू किए। हालांकि कोलंबस सबसे पहले जो आया था वो कैरेबियन आइलैंड के पास ही आया था, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीचों बीच का जो आइलैंड्स है वहीं पे आया था। तो अब यहाँ के जितने भी फूड है, क्रॉप्स है, इन लोगों के लिए नया था, और लेकिन काफ़ी स्टेपल फूड इनका, मतलब साउथ अमेरिकन्स और नॉर्थ अमेरिकन्स, पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट का फूड क्रॉप वगैरह का काफ़ी इन लोगों को नॉलेज था, और ये सारा एक्सचेंज हुआ। ये नॉलेज यूरोपियंस अपने साथ यूरोप ले गए, और यूरोप से धीरे धीरे एशिया में और अफ्रीका में सभी जगह ये फूड फैला। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि यूरोपियंस लोगों ने कैसे कॉन्क्वेस्ट कर लिया, एक छोटा सा स्पेन देश इतना बड़ा कॉन्टिनेंट को कैसे जीत गया, जबकि वहाँ पे बड़ा बड़ा एम्पायर था जिसको इन लोगों ने जीता था, इनका को जीता था, एज़टेक एम्पायर को जीता था। तो इसके पीछे इन लोगों ने कुछ जिसको कह सकते हैं कि आज के डेट के हिसाब से बहुत ही ख़राब काम किया था। इन लोगों ने कॉन्क्वेस्ट किया, लेकिन कॉन्क्वेस्ट में भी इन लोगों ने गन का इस्तेमाल नहीं किया ज़्यादा। इन बहुत कम सेलर्स के साथ, 500, 1000 लोगों के साथ इन लोगों ने 1-1 लाख लोगों सेना को हरा दिया। इन लोगों ने काफ़ी डिप्लोमेसी का भी यूज़ किया, क्योंकि ये लोग बिल्कुल नए वर्ल्ड, जो पुराने वर्ल्ड है जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये सब के डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स से को बिल्कुल नहीं जानते थे। तो इन लोगों को इस तरीक़ा से इन लोगों ने हराया। इसके अलावा एक नया तरीका डेवलप किया डिजीज़ फैला देने का, जर्म्स को फैला देने का। यूरोपियंस क्या किए थे कि स्मॉल पॉक्स का जर्म्स को लेकर के पूरे अमेरिका में फैला दिए, साउथ अमेरिका में जहाँ जहाँ इनको कैप्चर करना था। तो स्मॉल पॉक्स वगैरह का जर्म्स जो था, ये इन लोगों के देश में, जैसे यूरोप में और एशिया वगैरह में बहुत पहले से फैला हुआ था, तो यहाँ के लोग इम्यून हो गए थे। यूरोपियंस वेर इम्यून फ्रॉम पॉक्स, बट दीज न्यू पीपल, क्योंकि इनका कोई वर्ल्ड से, पुराने वर्ल्ड से कट ऑफ था ही नहीं। कोलंबस के पहले आज तक, क्रिस्टोफर कोलंबस के जाने के पहले, व्हेन क्रिस्टोफर कोलंबस रीच्ड अमेरिका इन 1492, देयर वर नो कॉन्टैक्ट विथ दीज टू वर्ल्ड। कोई यहाँ तक पहुँचा ही नहीं था। तो कोई भी डिजीज़ यहाँ नहीं था जो इस वर्ल्ड का डिजीज़ है, इधर वाले पार्ट का, यूरोप, एशिया वगैरह का, अफ्रीका का डिजीज़ अमेरिका में नहीं था।
तो जैसे पॉक्स का डिजीज़ हुआ तो मिलियंस ऑफ पीपल वेयर डाइड ड्यू टू पॉक्स, और इन लोगों ने आसानी से धीरे धीरे करके जर्म्स फैला फैला के और उसके बाद कॉन्क्वेस्ट करके पूरा अमेरिका को इन लोगों ने जीत लिया। तो इसी को कहते हैं कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। और कॉन्क्वेस्ट के बाद डिजीज़ फैला के फिर जीतने के बाद इन लोगों ने यहाँ के सारे जितने रिसोर्सेज थे उस पर कैप्चर कर लिया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों के रिसोर्सेज पे कैप्चर करके यूरोपियंस काफ़ी रिच हो गए। यूरोपियंस यहाँ से जितने भी टिम्बर, बड़ा बड़ा टिम्बर, क्योंकि यूरोप में मोटा मोटा टिम्बर नहीं होता है, वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन ऐसा, टिम्बर हुआ, फूड क्रॉप्स, सिल्वर, पेरू और ये सब जगह का सिल्वर बहुत फेमस था। यूरोप में एक कहावत था कि यहाँ पे कोई फेबल्ड वेल्थ है। एक अल डोराडो नाम का एक सिटी है अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, जो कि पूरा सोने का ही शहर है। ये सब कॉन्क्वेस्ट, इस सब के वजह से ये लोग अक्सर खोजने आते थे और इन्हें बहुत सारा चीज़ भी मिलता था अलग अलग तरह का। तो ये सारा ट्रेडिंग शुरू हो गया और सारा यहाँ का अमेरिका का रिसोर्सेज धीरे धीरे इन लोगों ने यूरोप में ले लिया और यूरोप से एशिया में इन लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। तो 16th सेंचुरी बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर ग्लोबलाइजेशन। बहुत पूरा वर्ल्ड एक सिमट करके एक छोटा हो गया। और अब जो कि पहले इंडिया था सेंटर ऑफ ट्रेड, इंडियन ओशन था सेंटर ऑफ ट्रेड, क्योंकि यूरोप का सारा और ईस्ट और वेस्ट एशिया का सारा ट्रेड इंडियन ओशन से होते हुए जाता था और इंडिया वाज सेंटर ऑफ ट्रेड। इवन चाइना वाज आल्सो सेंटर ऑफ ट्रेड। अब लेकिन ये ना हो करके अब नया अमेरिका मिलने के बाद यूरोप बिकेम सेंटर ऑफ ट्रेड, क्योंकि अमेरिका का सारा सामान, सारा रिसोर्सेज यूरोपियंस मास्टर हो गए, इसके लेने लगे और ये एशिया और यूरोप को अपना, एशिया और अफ्रीका को मार्केट बनाने का स्टार्ट हो गया। और कॉलोनाइजेशन भी इसी प्रोसेस में हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो अभी तक का मैंने हिस्ट्री जो समझाया कैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सिल्क रूट? व्हाट वाज सिल्क रूट? एक्सप्लेन इट्स कंट्रीब्यूशन। व्हाट वाज सिल्क रूट? एक्सप्लेन इट्स कंट्रीब्यूशन। इट इज क्वेश्चन नंबर 78 ऑन पेज नंबर 78 ऑन एनसीईआरटी बुक। आंसर यहीं पे भी मिल जाएगा, पेज नंबर 78। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अमेरिका इन शेपिंग द फूड हैबिट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अमेरिका इन शेपिंग द फूड हैबिट ऑफ द वर्ल्ड। ये भी पेज नंबर 78 और पेज नंबर 79 में इसका आंसर मिल जाएगा, जो मैंने डिस्कस किया था, अमेरिका का सारा फूड कैसे पूरे दुनिया में फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड became interrelated in pre-modern period. How conquest, disease and trade became interrelated in pre-modern period. यहाँ पे वही जो एक्सप्लेन करना है, पेज नंबर 79 एनसीईआरटी बुक, इसमें सारा एक्सप्लेन करना है जो मैंने अभी समझाया भी था कि कैसे यूरोपियंस लोगों ने कॉन्क्वेस्ट किया अमेरिका पे और वहाँ पे डिजीज़ को फैला करके फिर वहाँ पे कैप्चर कर लिया, फिर ट्रेड शुरू हो गया। तो ये सब है। सो अब तक मैंने आप लोगों को ये समझा दिया। और उसके बाद यूरोप में 19th सेंचुरी तक हंगर वगैरह कॉमन था। यूरोप बहुत गरीब भी था, पॉवर्टी वहाँ काफ़ी था 19th सेंचुरी तक। और ज़्यादातर वहाँ के शहर जो है डेडली डिजीज़ वगैरह से वहाँ पे घिरा हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब डिजीज़ वगैरह फैला रहता था यूरोप में। और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट भी बहुत होता था आपस में, धर्म का मतलब क्रिश्चियन में लड़ाई होता था आपस में, अलग अलग ग्रुप में, कैथलिक में, प्रोटेस्टेंट में। और रिलीजियस डिसेंटर्स को परसिक्यूट किया जाता था, मतलब जो धर्म के खिलाफ बोलने वाले को वहाँ पे मार दिया जाता था। तो बहुत सारे लोग यूरोप से भाग के अमेरिका जाने लगे और 18th सेंचुरी में अमेरिका में जाके ये लोग वहाँ पे प्लांटेशन शुरू कर दिए और वो लोग मालिक बन गए बड़े बड़े ज़मीन पे
और इसको उन लोगों के पास आदमी की कमी थी, क्योंकि यूरोपियन लोग काम नहीं करते थे, वो लोग तो मालिक थे, तो उनको स्लेव की ज़रूरत थी। और स्लेव, अमेरिका के नेटिव पीपल भी स्लेव बनने के लिए लायक नहीं थे, वो लोग सब भाग गए थे, या तो हार गए तो भाग गए अंदर जंगल वंगल में। तो ये लोग अफ्रीका से स्लेव पकड़ के लाने लगे और स्लेव ट्रेडिंग होने लगा, अफ्रीका से लेकर के अमेरिका में ले जाने लगे ये लोग। और कॉटन और शुगर वगैरह यूरोप के मार्केट में आने लगा एशिया अमेरिका से। तो और इंडिया के 18th सेंचुरी में चाइना और इंडिया, जो कि 18th सेंचुरी तक वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री था, दोनों का मतलब कि वर्ल्ड मार्केट में एमिनेंट पोजीशन था, टॉप पे यही था इंडिया और चाइना पूरे वर्ल्ड के ट्रेड में। उसका पोजीशन ख़राब होने लगा और 18th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे यूरोप और अमेरिका का पोजीशन डेवलप होने लगा। चाइना ऑलरेडी 14th सेंचुरी से अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे चाइना का रोल बिल्कुल कम गया था ग्लोबल मार्केट में। और इंडिया भी धीरे धीरे आकर के 18th सेंचुरी के बाद कॉलोनी बन गया ब्रिटेन का, एक तरह का इंपोर्टर बन गया सारे गुड्स का। और जो सेंटर ऑफ ट्रेड हो गया, सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और रिचेस्ट कंट्रीज सारे यूरोप हो गए। और धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में यूएसए वगैरह, एक यूरोपियन लोग कहीं जो अमेरिका में बस गए थे, यूएसए उन लोगों ने अपना कंट्री बना लिया और ये दोनों डोमिनेंट मतलब कंट्री बन गए। पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट और यूएसए बिकेम डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, eminent countries in world trade. So till now, one more question add. Question number 4. Compare the position of Europe with India and China till 18th century. Compare the position of Europe with India and China till 18th century. What was the condition of Europe till 19th century? What was the condition of Europe till 19th century? How the center of world trade moved from east to west during 19th century? How the center of world trade moved from east to west during 19th century? इसमें आपको पूरा यूरोप का कंपेयर करना है कि यूरोप का पोजीशन क्या था इंडिया और चाइना के सामने 18th सेंचुरी तक, और यूरोप का कंडीशन 19th सेंचुरी तक क्या था, वहाँ पे गरीबी, भुखमरी, ये सब बात। और लेकिन कैसे धीरे धीरे जो सेंटर वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर है ईस्ट से वेस्ट कैसे मूव कर गया 19th सेंचुरी में। मतलब ईस्ट का मतलब इंडिया चाइना था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इंडिया चाइना था, वहाँ से ये वेस्ट कैसे चला गया, मतलब यूरोप और अमेरिका में कैसे हो गया, ये एक्सप्लेन करना है। यू विल गेट द आंसर इन पेज नंबर 79 एंड page number 80. So first part of making of the global world we completed, and the next part I will send the video very soon. So all the best. Thank you.